Hi everyone, a very fresh morning to all. So welcome to EVS class. I have completed chapter 9 rocks and minerals. Okay. So this is our PA2 syllabus going on. Okay. So in PA2 syllabus we have 3 chapters. Chapter 9 rocks and minerals, chapter 10 air around us, and chapter 11 water. Okay, so in previous video we learnt about rocks and minerals, rocks and their types, and mineral and their types. Okay, so today I am going to start new chapter 10 air around us. Okay, so before going to start the chapter, I want to revise previous chapter. Okay, so the earth is mainly made up of rocks. Okay, so where do we found rocks? We found rocks on mountains, hills and in valleys. They are also found under rivers and seas. Rocks can be of different colors such as white, black, red and grey. Okay, they are different types also. Okay, in this chapter we learned some hard rocks and some soft rocks. Okay, hard rocks examples are granite, marble and sandstone. Okay, so granite is a hard rock. It is used to make kitchen counters. Okay, so it has many colors. Granite available in green color, black color. Okay, so marble is also a hard rock. It is used for making building statues and floors. The Taj Mahal in Agra is made of white marble. सी यहाँ पे ध्यान दीजिए, मार्बल का मैं जब भी एग्जाम्पल पूछूं तो आपको क्या लिखना है? मार्बल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग स्टैचूज एंड फ्लोर्स लिखना है, नॉट ताजमहल लिखना है, बिकॉज ताजमहल ऑलरेडी बन चुका है. इट्स मेड ऑफ, यहाँ पे है मेकिंग, हम बनाते हैं, बना चुके नहीं हैं. ओके, so sandstone is also a hard rock, but it is not as hard as granite or marble. Okay, sandstone भी hard rock है, but granite और marble से ज़्यादा hard नहीं है, ये medium hard है. Okay, so the Red Fort in Delhi made up of red sandstone. This is sandstone, made of sandstone. It's called Red Fort, लाल किला. It is in Delhi. Okay, सो हमारी राजधानी है ना दिल्ली इंडिया की, सो वहाँ पे ये लाल किला है. और ताजमहल कहाँ है? आगरा में है. ओके, ऑल्सो वी लर्न सॉफ्ट रॉक्स. सो सॉफ्ट रॉक्स में वन इज चॉक एंड अनदर इज स्लेट. ओके, सो चॉक इज यूज टू मेक चॉक स्टिक्स एंड स्लेट इज यूज टू मेक स्लेट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड एंड फ्लोर्स ऑल्सो. ओके, और रूफ्स भी बनाते हैं, हाउस के रूफ भी स्लेट से बन जाता है. ओके, ऑल्सो वी लर्न अबाउट सम मिनरल्स. सो ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. Minerals are of different colors, shapes and sizes. Many things that we use every day are made of minerals. Okay, please underline this one. Talc is the softest mineral and diamond is the hardest mineral. Okay, so we learned 7 minerals in this chapter. Okay, first one is silica sand. Silica sand is used to make mirrors and glasses. This glass mirror. Iron is used to make nails. Talc is used to make talcum powder. China clay is used to make flower vases. Graphite is used lead of a pencil. Quartz is used in watches. Gemstones are used commonly in jewelry. Examples of gemstones are ruby, emerald and garnet. Okay, so next we move to new chapter, air around us. Okay, this is also very interesting chapter. Okay, so in this chapter we are going to learn about the moving air, what does air contain, properties of air, keeping the air clean. Okay, so air means what? Okay, first we are going to do this exercise. Okay, look at the following pictures in both of them. There is something that is moving which
कैन नॉट सी बट यू कैन फील इट. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एयर. आपको यहाँ पे फिल में एयर लिखना है. आपको पता है वी कैन नॉट सी एयर. आपको हवा दिखती है कहीं से? नो, यू कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील द एयर. We can feel wind but we cannot see wind. Okay, so next move to moving air. So please underline this sentence. Moving air is called wind. Okay, what is a wind? Moving air is called wind. Wind helps us in many ways. ओके, हमने इतने दिन जाना प्लांट्स हमें हेल्प करते हैं, एनिमल्स हमें हेल्प करते हैं. आज हमने जाना एयर भी हमें मदद करते हैं, है ना. सो एयर कैसे मदद करता है? विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. ओके, जब हम ब्रीथ लेते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन है जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, वो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं. तो लंग्स के थ्रू हम एयर लेते हैं और लंग्स के थ्रू हम एयर छोड़ते हैं, है ना. सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. ओके, सो विंड कैसे हमें हेल्प करता है? फर्स्ट वन, विंड हेल्प्स अ काइट फ्लाई. आप देख सकते हो जब भी हवा रहती है तभी काइट उड़ती है, अदरवाइज वो नहीं उड़ती है. नेक्स्ट वन, विंड हेल्प्स अ बोट सेल. मतलब विंड जो हाउस बोट रहता है, बोट सेल रहता है जो क्लॉथ से बना रहता है और ये वुड का बना है, ये भी विंड की मदद से चलता है. यहाँ पे मशीन फ्यूल कुछ नहीं आता है. ओके, ये सिर्फ विंड कैसे दिशा में रहती है उस दिशा में ये बोट चलती है. ओके, सो विंड टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल. ये विंड मिल है. ओके, आज आपको होमवर्क में विंड मिल ड्रॉ करना है, मैं वो पिक्चर सेंड करूँगी. ओके, ये नहीं, थोड़ा सिंपल वाला ड्राइंग मैं सेंड करूँगी. ओके, सो ये जो ब्लेड से विंड की मदद से मूव करते हैं. जब भी आप मोरबी से राजकोट जाते हो तो आप वहाँ पे नोटिस कर सकते हो, या ये विंड मिल बहुत है वहाँ पे रोड पे. ओके, सो नेक्स्ट, विंड हेल्प्स क्लॉथ्स ड्राई फास्टर. मतलब जो क्लॉथ्स मम्मा धो के बाहर डालती है सूखने के लिए, तो विंड की मदद से क्लॉथ सूख जाते हैं. ओके, जो सन हीट है, जो हम सन के अंडर क्लॉथ्स डालते हैं, तो वो वाटर, क्लॉथ्स में जो वाटर रहता है वो वाटर वेपर बन के एयर में घुल मिल जाता है. आगे हम वही सीखने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट, अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज. वी एंजॉय अ कूल ब्रीज. ओके, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कूल ब्रीज कैसे चलती है. कितनी अच्छी हवा चलती है ना, तो कान में बहुत अच्छा लगता है वो सुनने में. ओके, हम ब्रीज को एंजॉय करते हैं, नॉट स्टोर्म. विंड में दो प्रकार है, एक ब्रीज है, एक स्टॉर्म है. ओके, हम ब्रीज को एंजॉय करते हैं, स्टॉर्म को नहीं. व्हेन द विंड इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्लोज वेरी फास्ट, इट इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. A storm can be harmful. It can blow things away and damage trees and houses. मतलब यहाँ पे देखिए, जो विंड है ना, विंड में दो प्रकार के हैं, एक ब्रीज विंड है, एक स्टॉर्म है. ब्रीज हम एंजॉय करते हैं क्योंकि ये मंद हवा चलती है. अभी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि ब्रीज हवा कैसे चलती है. ओके, हो गया, आपने देख लिया. तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको स्टॉर्म कितने ज़ोर से चलती है और स्टॉर्म से हमें कितना नुकसान पहुँचाता है. ओके, जब भी स्टॉर्म आती है ना, तो टोर्नेडो सब जब समुद्र में आता है तो इट कैन ब्लो थिंग्स अवे, डैमेज ट्रीज एंड हाउसेस. जो कच्चा हाउस रहते हैं वो डैमेज होते हैं, नॉट पक्का हाउस. ओके, सो ये सब स्टॉर्म जब आता है तब. ओके, आप न्यूज़ में सुने होंगे कहीं कहीं जगह स्टॉर्म आती है तो कितना कोलैप्स हुआ रहता है, सब उनके घर, उनके एनिमल्स, ये सब. इवन हेवी रेन भी होता है, फ्लड आता है तो भी हमें बहुत नुकसान होती है. ओके, वी एंजॉय जेंटल विंड. मीन्स जेंटल विंड कौन सा है? ब्रीज है. बट वी डू नॉट एंजॉय स्टॉर्म बिकॉज स्टॉर्म इज हार्मफुल अस. ओके, जब भी स्टॉर्म आती है तो सारे थिंग्स जो है वो उड़ जाते हैं. ओके, तो ये मैं अभी स्टॉर्म का वीडियो दिखा रही हूँ. ओके,
वीडियो रहेगा अबाउट कैसे कपड़े सूखते हैं सूरज के किरणों से, विंड से, ओके। काइट कैसे फ्लाई होती है, ये मैं आगे वीडियो आपको दिखा रही हूँ, ओके। ये वीडियो फुल डिटेल में देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना ही हम आज करेंगे, ओके। सो कल हम दूसरा पेज एक्सप्लेन करूँगी 94, ओके। तो आज आप क्या करेंगे, विंडमिल ड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे, चैप्टर रीड करेंगे, ओके। विंडमिल ड्रॉ करेंगे और चैप्टर रीड करेंगे, ओके। कल हम ये पूरा मैं फिनिश करूँगी ये दोनों पैराग्राफ, ओके। सो यहाँ पे देखिए, कल मैं ये शुरू करूँगी, व्हाट डज एयर कंटेन, एयर में क्या क्या कंटेन्स है, ओके। Air is a mixture of gases, water, vapor, etc. Wet cloths when kept under the sun become dry after some time. The heat of the sun changes the water present in these cloths into water vapor. This water vapor mixes with the air around, thus air contains water vapor. मतलब एयर में क्या क्या कंटेंट्स हैं हम वो जान रहे हैं, ओके। इसका पूरा डिटेल में मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि कपड़े कैसे सूखते हैं और कपड़े के अंदर जो वाटर रहता है वो सन के हीट से कैसे बाफ बन के हवा में फैल जाता है। तो वाटर, एयर कंटेन्स वाटर वेपर। सो एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट एंड स्मोक, है ना। एयर तो ऑलरेडी वाटर, एयर कंटेन वाटर वेपर है, ऑल्सो डस्ट एंड स्मोक भी है। So smoke is given off when something burns. It also comes out of vehicles and factories. The smoke mixes with the air around us. एयर में स्मोक फैल जाता है, लाइक कुछ व्हीकल से स्मोक बाहर आती है, फैक्ट्री से और सम बेकरी से स्मोक बाहर आता है, और बॉनफायर, जब हम ठंड में बॉनफायर चलाते हैं ना गर्म रखने के लिए, उससे भी पोल्यूशन होता है, मतलब स्मोक जो है वो एयर में फैल जाता है। एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स। जर्म फ्रॉम अ सिक पर्सन गेट मिक्सड विद द एयर व्हेन ही और शी स्नीजेस। मतलब एयर में जर्म्स रहते हैं। कैसे रहते हैं, जब भी हमें सर्दी होती है, हम छींकते हैं तो हमारे अंदर जो जर्म्स रहता है वो दूसरे आदमी को हम दे रहे हैं, मतलब दूसरे लोगों को वो हम पास ऑन कर रहे हैं। ये हमें नहीं करना है। जब भी हमें छींक आती है, खांसी आती है, तो हमें नाक के पास रुमाल रखना है ना। तो हमारे अंदर जो जर्म्स है वो दूसरों को क्यों दे, क्या ये गिफ्ट है जो हम दूसरों को फैला रहे हैं? नहीं, है ना। तो हमें इतना केयर रखना है। जर्म्स ऐसी चीज़ें हमें दिखती नहीं है, बट एयर में ये रहता है, ओके। डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी। डर्टी एयर मेक्स अस इल। मतलब ये जो हम छींकते हैं, हमारे अंदर से जर्म्स जो बाहर आते हैं, उससे एयर ये हो जाता है, पोल्यूशन होता है, ओके। सो ये सब हमें रोकना है। तो आज हम लेट्स रिमेंबर भी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर प्रेजेंट इन एयर, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। मतलब एयर कंटेंट्स क्या क्या है, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स। तो यहाँ पे क्या सर्कल करेंगे हम, स्मोक, डस्ट, वाटर वेपर, जर्म्स, ओके। सो एयर कंटेंट्स स्मोक, डस्ट, वाटर वेपर एंड जर्म्स, ओके। नेक्स्ट मूव टू कंप्लीट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वन है we blank see air. Can we see air? No, we cannot see air. Okay, यहाँ पे cannot लिखना है आपको। सेकेंड, smoke is blank for us. Smoke कैसे हमारे लिए यूजफुल है या हार्मफुल है? No, smoke is harmful for us. ओके, ये जो गाड़ियों से स्मोक आती है फैक्ट्री से, हमारे अंदर चला जाता है नाक से, तो हमें बीमार कर देता है ना। सो थर्ड वन, ग्रीन प्लांट्स मेक द एयर डैश। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, एयर को क्लीन रखता है, डर्टी नहीं। डर्टी हम ह्यूमंस करते हैं, एयर डर्टी स्मोक से, बॉनफायर जला के, व्हीकल से, लेकिन प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देती है, ओके। सो यहाँ पे हमारा इतना पैराग्राफ ख़त्म हुआ। ये आज का आपका होमवर्क है, प्लस विंडमिल आपको ड्रॉ करना है, ओके। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन। Air. Air is everywhere around us. We cannot see air, but we can feel it. Let us study more about air in this chapter. Air is a mixture of gases. Air consists mainly of nitrogen and oxygen.
Air also contains carbon dioxide and water vapor. Air contains water vapor. When water boils and changes into steam or gaseous form of water, it is called water vapor. After we wash our clothes, we hang them on the clothesline in the sun to dry. The water in the clothes goes in the air as water vapor, and so the clothes become dry. Water vapor gets into the air all the time from ponds, lakes, rivers and oceans. So air always contains water vapor. Air has smoke in it. The smoke coming out of vehicles like buses, trucks or cars also mixes with air. The smoke coming out of the chimneys of factories or bakeries also mixes in air. The smoke also comes from bonfires, which goes up into the air and makes the air impure. Air that contains dust or smoke is bad for us to breathe. This may harm our health. Dust particles also carry disease germs which make us sick. Air has germs in it. When a sick person coughs or sneezes, germs come out and mix with the air. These germs, inhaled by someone, may make him sick. Air has dust particles in it. When vehicles move or a sweeper sweeps the road, dust particles rise up and mix with the air. Wind. Moving air is called wind. We cannot see the wind. We can feel the wind. When the wind blows slowly and gently, it is called breeze. When the wind blows fast and hard, it is called a storm. Wind has direction. We can find out the direction in which the wind is blowing. Take some sand on the table and switch on the fan. It gets blown in the direction in which the wind is blowing. Take some sand on the table and switch on the fan. It gets blown in the direction of the wind. We can also find the direction of the wind by looking at the movement of the branches of the tree. A kite moves along the direction of the wind. Wind force is useful. With the wind, we are able to hang glide, to windsurf, to work a windmill, and to sail boats and small sail ships. Clean and fresh air. Keep the windows open with a wire net. It will allow fresh air to come in. Always go for a morning walk. Morning air is fresh. Keep the surroundings clean. It will keep the air clean. Grow green plants where we live. Plants make the air fresh and clean. Play in the open. It will give more of fresh air. Do not cover your face while sleeping. If we cover our face, we cannot breathe properly. Summary. Air is a mixture of gases. Air contains water vapor. Heat changes water into water vapor. Air has dust particles, smoke and germs in it. Air containing germs causes diseases. Air containing dust, smoke and germs is bad for health.